रियासती हुकूमत ने महकमा रेवेन्यू में काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स की खिदमात को दीगर 4 महकमों में हासिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने VRS की खिदमात को बाकायदा बनाते हुए उन्हें मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर करने से मुतालिक सरकारी काम जारी कर दिए। रियासत भर में महकमा रेवेन्यू में 20,555 VRS को सुपर एनुमरी पोस्ट में तब्दील कर दिया गया है और महकमा रेवेन्यू में VRS के सिस्टम को मुस्तकिल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा रेवेन्यू में अराज़ियात से मुतालिक देखभाल करने वाले VRS का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। साबिक़ में से लश्कर और दूसरे कई नामों से जाना जाता था और इस सिस्टम में काम करने वाले अफराद अपने दादा परदादा से विरासत में इस मुलाजिमत को हासिल किया करते थे। ताहम हुकूमत ने VRS के सिस्टम को ख़त्म करते हुए उनकी खिदमात को महकमा पंचायत राज, बल्दिया, मिशन भागीरथा आबपाशी में हासिल करने का फैसला किया। भुवनगिर के DCC सदर अनिल रेड्डी ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ज़राअत के शोबे को तरक्की देते हुए हुकूमत ने इसे त्यौहार में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे मियारी बरक़ी मुख्तलिफ शोबों के लिए फराहम की जा रही है। ఒకసారి యాడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా భయం అవుతుంది. ఏ ఇంట్లో చూసినా కానీ జనరేటరు, ఇన్వర్టరు, కన్వర్టరు, స్టెబిలైజరు, లేకపోతే టీవీ కాలిపోతుంది, ఫ్రిడ్జ్ కాలిపోతుంది. చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి మనమే అనుభవించినాం. దాన్ని ఒక 7-8 నెలల టైంలో చాలా వరకు బాగా చేసి అన్ని రంగాలకు ఇచ్చిన ఒక వ్యవసాయం తప్ప 24 గంటలు క్వాలిటీ కరెంట్ ఇచ్చినాం. ఈవెన్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇచ్చినాం. మొత్తం రైతులకు ఇచ్చే ముందు అది ఎలక్ట్రిసిటీ అధికారులు ఇట్లా గదగద వణుకుతున్నారు. ఈయనరా భయ్ ఏం కాదు అట్లుంటేనే మీకు మంచిగా ఉంటుంది అని ఉన్న చిన్న కిటికీ ఏంటంటే ఈ 7 గంటలే వస్తుంది అంటే 7 గంటల టైంలోనే ప్రతి ఒక్కరు కరెంట్ వస్తుంది. అందరూ ఒకటేసారి పెడితేప్పటికి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోడు, మోటార్లు కాలిపోడు. నేను చెప్పి మీరు అంతా భయపడే అవసరం లేదా. 24 గంటలు ఉన్నట్టయితే నా ఇష్టంలో నేను పెట్టుకుంటా, ఇంకొని ఇష్టం ఎవరికి వీలుని బట్టి వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు రైతులు కూడా అన్నారు స్టార్టింగ్లో నాతో ఏమన్నారంటే సార్ 24 గంటలు ఆయనతో ఉన్న భూగర్భం నీళ్ళు ఎత్తిపోతాయేమో, అది కూడా పరిస్థితి అవుతుందేమో అర్థం కాక దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేసినామంటే మిషన్ కాకతీయ చేసుకొని దాని సామర్థ్యం పెంచుకున్నాం. కొంతమంది ఎకానమిస్టులు, ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇంత డబ్బా అనండి వ్యవసాయానికి మీరు 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి రైతు బంధు ఇస్తారు, వాళ్ళని చచ్చిపోతే ఆ డబ్బు కడతారు, బీమా సౌకర్యానికి కరెంటు ఫ్రీగా ఇస్తారు, మళ్ళీ ధాన్యం కొని మళ్ళీ అమ్ముతారు. మీరు నిన్న మా రైతుల కోసమే కదా, మా రైతులు ఆగమైపోయి ఉండ్రి, చెట్టుకోడు గుట్టకోడు అయిన ఉండ్రి. కాబట్టి అది వాళ్ళు కుదురుకునేదాకా గ్రామీణ ప్రాంతాలు BRS MLA A गांधी ने सलोचना अग्रवाल के इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के करीब होने पर साजिश के हिस्से के तौर पर ये इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सलोचना अग्रवाल कौन है वो नहीं जानते, उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी अराजी के रजिस्ट्रेशन में गांधी रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। సులోచన అగర్వాల్ చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవం. కోర్టులో నన్ను 8వ నెంబర్గా చేర్చి నా మీద ఆరోపణ చేశారు. ఈ సులోచన అగర్వాల్ అనే ఆవిడ ఎవరో కూడా తెలియదు, ఎప్పుడు చూడలేదు, కనీసం ఎప్పుడు కూడా ఫోన్లో మాట్లాడలేదు. నా మీద అసత్య ఆరోపణలు చేసినటువంటి సులోచన అగర్వాల్ మీద న్యాయపరంగా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవటం, దీని విషయంలో వెనకాడే ప్రసక్తి లేదు. దీని విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం. మేము ఎటువంటి ఆరోపణలు నిరూపిస్తే దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. నా మీద లేని ఆరోపణ చేస్తే మీ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని మీరు శిక్షకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. DGP अंजनी कुमार ने बैन रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें पड़ोसी रियासतों के पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें मालूमात के तबादले, मुश्तरका ट्रेनिंग और मुश्तरका ऑपरेशंस भी शामिल है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने तारीखी और सनसनीखेज फैसले में कोत्तागुड़म के बीआरएस रुकन असेंबली वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कलअदम करार दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला 2018 के असेंबली इंतखाबात में उनकी जानिब से झूठा हलफनामा देने के इल्ज़ामात में सुनाया है। उनके करीबी हरीफ उम्मीदवार जलगम वेंकट राव ने उनके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वेंकटेश्वर ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात और असासे तमाम इंतखाबी हलफनामे में झूठे पेश किए, इसलिए इनके इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है और उनके खिलाफ शिकस्त खाने वाले वेंकट राव 12 दिसंबर 2018 से एमएलए होंगे। अदालत ने झूठा हलफनामा जमा करवाने पर वेंकटेश्वर को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। बीजेपी लीडर श्री रामुलू ने एनटीआर नगर में सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की कमी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पोते हिमांशु के वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के सामने किए गए रिमार्क्स के बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई है। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि बाथरूम्स और असातिज़ा की कमी है। कई मरतबा अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ఫేజ్ 1లో ఉంది। ఇక్కడ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ ఉంది। ఈ స్కూల్లో 178 మంది పిల్లలు ఉంటే నిజంగా విచిత్రమైనది। మన విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి కాన్సెన్స్ ఇది। సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి మరి తెలుసా తెలియకనా, మరి అవగాహన ఉండి ఉందా అవగాహన లేక ఉందా? మనం పైన పోతే ఒకటే రూమ్ ఉంది, ఒకటే రూమ్లో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ థర్డ్ ముగ్గురు ఒకే దగ్గర కూర్చోబెట్టి స్టడీ చెప్తే ఏం అర్థమవుతుందో ఒకసారి మంత్రి గారికి అవగాహన ఉందా అడుగు। ఒకటో క్లాస్ చెప్పిన వాళ్ళకు మూడో క్లాస్కి ఏం అర్థమవుతుంది, మూడో థర్డ్ క్లాస్ చెప్పిన వాళ్ళకు సెకండ్కి ఏం అర్థమవుతుందో ఒకసారి మంత్రి గారికి నిజంగా పిల్లలు ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నారో మంత్రి గారికి తెలుస్తలేదా? మరి మంత్రి గారు చూడలేదా ఇక్కడ? అదేవిధంగా కింద వచ్చి కూడా ఒకటే రూమ్ ఉంటుంది, అందులో 4th 5th ఉంది, అంతే కదా సార్? 4th 5th ఉంది, అందులో ఒకటే దాంట్లో ఒకటే రూమ్లో కూర్చోబెట్టి చెబితే స్టడీ ఏమర్థమవుతుంది? విద్యాశాఖ మంత్రి ఉండి ఈ రోజు నీ కాన్సెన్స్లో ఏ విధంగా ఉందంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ విధంగా ఉందో మంత్రి। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाएगी। उन्होंने नेकलेस रोड पर साइकिलिंग, इंदिरा पार्क पर स्केटिंग के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में खिलाड़ियों और कोचेस से नाइंसाफ़ी होती थी, ताहम अब ऐसा नहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की मदद से स्केटिंग, साइकिलिंग, रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से ये मुकाबले मुनक़िद किए गए। అనేక కార్యక్రమాలు మా స్పోర్ట్స్ నుంచి సైక్లింగ్, తర్వాత రెజ్లింగ్ పోటీలు, స్కేటింగ్, ఇట్లా స్పీడలు, 3 క్రీడలు మా శాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మరియు ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మరియు ఒలింపిక్ స్పోర్ట్స్ మెన్ల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। ముఖ్యంగా మా స్పోర్ట్స్ మెన్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చేటట్లు, స్పోర్ట్స్ పట్ల ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చేటట్లు చేయాలని చెప్పి పిలిపిస్తున్నాం। చెప్తున్నా నేను, ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఏదో ఒక కార్యక్రమం చిన్నగా సహాయం, ఒక 10 డజన్ అట్టి పనులు తీసుకుపోయి ఏదో అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడము, ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి, ఆర్థిక స్తోమత బాగుంటే వికలాంగులకు వెహికల్స్ ఇప్పియండి, 3 వీలర్స్ ఇప్పియండి, ఇంకేమన్నా పేదవాళ్ళకు చలికాలం వస్తుంది కనుక దుప్పట్లు ఇప్పియండి, అట్లా ఏదో కూరగాయలు అమ్మే దగ్గర చిత్రలు ఇప్పియండి, వర్షాకాలం చిత్తూరు లిపియండి, అట్లా ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి। मध्य प्रदेश में रेवेन्यू के एक मुलाजिम ने रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े जाने पर इस रकम को मुंह में डालकर निगल लिया। ये अनोखा वाक़या कटनी ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लोक आयुक्त ने रिश्वत की रकम लेते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके फौरी बाद इसने नोटों को चबाकर निगल लिया। ये वाक़या कटनी ज़िले में पेश आने के साथ ही इलाके में इसकी खबर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। महकमा रेवेन्यू के पटवारी गजेंद्र सिंह ने शिकायत कुनिंदा चंदन सिंह से ज़मीन के एक मामले में 5,000 रुपये रिश्वत तलब की थी।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाई गई छतरी में बैठकर 2 अफराद ने शराब नोशी की। यह अनोखा वाक़या माधापुर में पेश आया और इसकी वीडियो वायरल हो गई। माधापुर की शिल्पा कला वेदिका के करीब IT कॉरिडोर की सड़क के दरमियान ट्रैफिक पुलिस के लिए ये छतरी बनाई गई है, जिसमें बैठकर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन ट्रैफिक को बाकायदा बनाते हैं। इस छतरी में मुलाजिमीन पुलिस की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये शराबी दाखिल हो गए। उन्होंने अपने साथ लाई हुई शराब इसमें बैठकर पी ली। विकाराबाद जिले के परगी में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में लखनापुर प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट की सतह में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर अत्तापुर इलाके में 4 मंजिला इमारत के करीब बिजली गिरने का वाक़या पेश आया। बिजली गिरने के साथ ही ज़ोरदार आवाज़ आई, जिससे मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। ये वाक़या अत्तापुर डिवीज़न वासुदेव रेड्डी नगर में पेश आया। इस वाक़े में किसी जानी और नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता अपार्टमेंट में रहने वालों के इलेक्ट्रॉनिक अशिया को नुकसान पहुँचा। रायपुर में बरहना होकर नौजवानों ने एहतजाज किया। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि ये नौजवान हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये एहतजाज फर्जी ज़ात के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुर पर हुकूमत के नामुनासिब रवैये पर किया गया। माह मुहर्रम में हर साल अलावा बीबी पर एक हिंदू ख़ानदान ज़ियारत करता है और मजालिस का एहतमाम करता है। इस सिलसिले में एक हिंदू खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 20 साल से 3 मुहर्रम को बीबी का अलावा में ख़वातीन की मजलिस का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि 3 रबीउल अव्वल को भी मजलिस मुनक़िद की जाती है और घर पर भी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इस खातून ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का पैगाम दिया है। आज हम लोग 3 मुहर्रम का एक अप्रॉक्स 20 ईयर से हम लोग बीबी के अलावे में जनानी मजलिस करते हैं। और पूरा ईयर में कितने टाइम्स करते हैं आप लोग, कहाँ करते हैं? जी एक्चुअली हमारे हिंदूस में क्या है, वी डू फॉर 10 डेज। हमारा 10 दिन का करते, जैसे कि घर में कोई मैयत है तो क्या हमारे रूल्स रहते वो हम लोग करते, जैसे कि आंगन नहीं झाड़ना है, खाना नहीं बनाना है, ये सब हम लोग 10 मुहर्रम तक करते। ये हमारे दादा परदादाओं से करते हुए आ रहे। बस हम लोगों को मालूम हुआ इमाम हुसैन क्या है तो हम 2 महीने 8 दिन करते। यहाँ पे हमारा एक 3 मुहर्रम का मजलिस होता और एक बड़ा मजलिस बाबा का मर्दाना होता, मर्दाना और जनाना 3 रबीउल अव्वल को होता। दूसरे बहुत है, मीर के दायरे में है और घर पे आलम है, हमारे आलम का मजलिस होता, बहुत है। हम लोग ये कोई अभी बता रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई पब्लिसिटी के लिए बता रहे या कुछ नहीं। हम लोग ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे कि ये इमाम हुसैन का जो है कोई भी मजहब वाले कर सकते, जो इंसानियत रखता वो इमाम हुसैन की मजलिस कर सकते, इमाम हुसैन का मातम कर सकते।
संगारेड्डी जिले से लापता 21 साल तालिब इल्म की लाश विशाखापट्टनम साहिल पर पाई गई। इसकी शनाख्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के तालिब इल्म कार्तिक के तौर पर की गई है। वो बीटेक मैकेनिकल साल दुवम में ज़ेर तालीम था और नलगुंडा जिले का रहने वाला था। ये तालिब इल्म 17 जुलाई से कैंपस से लापता हो गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।